हेलो एंड वेलकम टू जीके सर क्लासेस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड particularly we will discuss about specialized agencies of the UN. So we will cover United Nation Educational and Scientific and Cultural Organization, that is UNESCO, then UNICEF, United Nation International Children's Fund, then ILO, International Labour Organization, then World Bank, IMF, International Monetary Fund, then GATT, Journal Agreement on Trade and Tariff. Journal Agreement on Trade and Tariff. So let's get started. First organization is UNESCO, and UNESCO stands for United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश कब हुई? एस्टैब्लिश्ड हुई 1945. हेडक्वार्टर is in Paris, France. Paris, France. And if I talk about member, then member are 195. 195 are permanent member and 11 are associate member. If we talk about functions, then what are the functions? What are the objectives of UNESCO? You might have heard about World Heritage Site. So what are World Heritage Site? UNESCO World Heritage Site. World Heritage Site are the knowledge center, which can be historical, cultural, social, geographical. It can be anything. Historical, cultural, social, geographical. And if we talk about UNESCO World Heritage Site, then you might know that Ajanta and Ellora caves, Taj Mahal, Bhimbetka caves, Konark Temple, all these are what? All these are UNESCO World Heritage Site. और इन नॉलेज सेंटर को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है. So what UNESCO do? UNESCO make World Heritage Site. It create World Heritage Site. तो पहला फंक्शन इसका क्या है? It create World Heritage Site. Second function is to promote scientific temperament. Promote scientific temperament. And the third one is protecting freedom of expression. Very important. Protecting freedom of expression. So it can be the prospective question in your exam, that which of the following are the functions of UNESCO. So it might came that the protection of freedom of expression is one of the function of UNESCO. So it will be right. Next organization is UNICEF. UNICEF. So UNICEF stands for United Nation International Children's Fund. So what is the keyword here? Keyword is children. So UNICEF is work for children's right. तो children के क्या क्या right होते हैं? For example, education is the right of
दूसरा, एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए चिल्ड्रंस का। एक्सप्लॉइटेशन इन टर्म ऑफ लेबर, चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। हेल्थ सही होना चाहिए, न्यूट्रिशन सही होना चाहिए बच्चों का। सो ये सारी चीजें, ये सारे राइट कौन देखता है? यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। ये एस्टैब्लिश कब हुआ? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1946। हेडक्वार्टर is in New York and member are 36. If I talk about next organization, then it is ILO. ILO stands for International Labor Organization. International Labor Organization. So what is the keyword here? The keyword is labor. It talk about labor right. तो आपको पता होगा कि जो लेबर है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट करती है, तो हर जगह का वर्किंग कल्चर जो है वो एक तरह से लेबर के राइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इफ यू आर वर्किंग इन फैक्ट्री, तो फैक्ट्री में एनवायरनमेंट सही होना चाहिए। अगर आप मशीन के पास काम कर रहे हो तो आपके पास पूरी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। हेल्थ सैनिटेशन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द functions of ILO. ILO protect about labor right. We talk about labor right. So if I talk about ILO, तो ये establish कब हुआ? Establish हुआ 1919 में। Headquarter is in Geneva, Switzerland. Geneva, Switzerland. And if I talk about member, then member are 187. 187 member हैं इसके। Next is World Bank. So if I talk about World Bank, तो World Bank establish हुआ जुलाई 1944। Headquarter Washington DC, USA. And if I talk about member, then member are 189. What are the function of UNO? So the main objective of World Bank, main objective of World Bank is to provide loan to the member country. Member country को loan provide करना as a capital. Member country को loan provide करना as a capital. Now capital क्या होता है? Capital वो money होता है जिसको invest किया जाता है किसी project में in order to get profit. So अगर आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, सो वर्ल्ड बैंक कैन गिव यू द लोन लाइक अदर ऑर्डिनरी बैंक जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं। वर्ल्ड बैंक कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज IMF। IMF, सो IMF एस्टैब्लिश हुआ दिसंबर 1944। हेडक्वार्टर इज इन Washington DC, USA. And if I talk about the member, then member are 189. Initially there were 189 member, right now it has 190 member. और जो न्यू कंट्री ऐड हुई है that is एंडोरा। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है? What is the difference between World Bank and IMF? What is the difference between World Bank and IMF? World Bank provide loan to the member country as a capital. और अगर बात करी जाए IMF की, so IMF help the member countries.
help the member countries in order to make economical and financial policies. Financial policies. If the countries are in crisis, let's say, if the countries are in crisis, if they are in crisis, then how IMF help? What is the crisis in economy? वो होता है BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट. अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? कंट्री एक्सपोर्ट भी करती हैं, कंट्री इंपोर्ट भी करती हैं. अगर कंट्रीज का इंपोर्ट ज्यादा है तो ऑब्वियसली कंट्रीज से पैसा जाएगा, और एक्सपोर्ट कम है तो फॉरेन करेंसी, पैसा जो है मनी फॉरेन कंट्रीज से वो कम आएगा. सो इंपोर्ट करने के लिए आपके पास फॉरेन करेंसी डिपॉजिट रिजर्व होने चाहिए, फॉरेन करेंसी रिजर्व होने चाहिए. अगर आपके पास ये फॉरेन करेंसी रिजर्व नहीं रहते हैं, उस केस को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. तो अगर आपके पास फॉरेन करेंसी रिजर्व नहीं है तो आप इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हो. इन केस लाइक इंडिया, जहां पे इंपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, पेट्रोल आप लगभग 95% आप बाहर से मंगवाते हो, तो इन केस ऑफ इंडिया बीओपी क्राइसिस एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस है. सो अगर बीओपी क्राइसिस होता है तो आईएमएफ हेल्प करता है ऑन द बेसिस ऑफ कोटा. अब ऐसे ही हेल्प थोड़ा कर देगा आईएमएफ. आईएमएफ हेल्प करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीज कोटा. कोटा क्या होता है? जो कंट्रीज ने कंट्रीब्यूशन किया होता है आईएमएफ में, और इस कोटा को बोलते हैं एसडीआर. एसडीआर क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट. स्पेशल ड्राइंग राइट. इफ आई टॉक अबाउट स्पेशल ड्राइंग राइट, तो स्पेशल ड्राइंग राइट में कंट्रीज 5 करेंसीज को निकाल सकती हैं. मेंबर कंट्रीज आईएमएफ से 5 करेंसीज निकाल सकती हैं बेस्ड ऑन देयर कंट्रीब्यूशन. तो वो 5 करेंसीज कौन कौन सी हैं? यूएस डॉलर, यूरो, युआन, येन, पाउंड. तो ये 5 करेंसीज मेंबर कंट्रीज निकाल सकती हैं एज ए एसडीआर फ्रॉम आईएमएफ. तो एसडीआर जो है वो किसका इंस्ट्रूमेंट है? क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एज ए एमसीक्यू. सो एसडीआर इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ आईएमएफ. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर बात करी जाए वर्ल्ड बैंक की और आईएमएफ की, तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को ब्रेटन वुड ट्विंस भी बोला जाता है. ब्रेटन वुड twins. So it can also be the prospective question in your exam, that which of the following organization are known as Bretton Woods twins. So these are World Bank and IMF. अब ये ब्रेटन वुड ट्विंस क्या है, इसको जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा व्हाट इज ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस. ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस. सो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था यूएनओ की एस्टेब्लिशमेंट के बाद. और यूएनओ का अगर आप ऑब्जेक्टिव देखोगे तो यूएनओ का ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज. इंटरनेशनल कोऑपरेशन क्या होना चाहिए? प्रमोट होना चाहिए कंट्रीज के बीच में. अब ये कैसे होगा? अब इसके लिए इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस सारे कोऑपरेशन चाहिए कंट्रीज के बीच में. सो अगर किसी कंट्री को लोन चाहिए तो देयर शुड बी द ऑर्गेनाइजेशन इन द इंटरनेशनल लेवल जो उनको लोन प्रोवाइड करे. अगर किसी कंट्री में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है तो देयर शुड बी एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्प करे फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाने में, इकोनॉमिकल पॉलिसीज बनाने में, अगर उस कंट्री में कोई प्रॉब्लम है तो इसीलिए ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ और 3 ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करने की बात करी गई. वन वाज वर्ल्ड बैंक, सेकंड वाज आईएमएफ जिनको हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, एंड थर्ड वन वाज गैट. सो गैट का फुल फॉर्म है जर्नल एग्रीमेंट
journal agreement on trade and tariff. Journal agreement on trade and tariff. जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ एस्टैब्लिश हुआ 1948 में। अभी अगर बात करा जाए तो इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था कि ट्रेड जो है कंट्रीज के बीच में उसको प्रमोट करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होते हैं कंट्रीज के बीच में उसको प्रमोट करना। बट 1994 में इसको चेंज करने की बात बोली गई और 1994 में इट वाज रिप्लेस्ड बाय डब्ल्यूटीओ। तो अगर डब्ल्यूटीओ पूछा जाए एस्टैब्लिश कब हुआ, ये एस्टैब्लिश हुआ 1995 में। हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। एंड मेंबर कितने हैं इसके? मेंबर हैं 164। So this is very important when we discuss about international organization. All these organization are in न्यूज में रहती हैं, कभी ना कभी दे वर इन न्यूज, दे आर इन न्यूज। एंड अगर देखा जाए इनके न्यूज में होने का कारण, तो ये सारी चीजें जो हैं वो डे टू डे लाइफ में होने वाली है इंटरनेशनल लेवल पे। तो डब्ल्यूटीओ जो है वो ट्रेड से रिलेटेड सारी पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन बनाता है। कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता रहता है। ऑयल क्राइसिस, ऑयल प्राइसेस, फूड प्राइसेस, ये सारे इश्यूज रहते हैं। कोई कंट्री किसी के ऊपर कस्टम ड्यूटीज बढ़ा रहा है, तो ये सारी चीजें जो है वो डब्ल्यूटीओ के अंडर आती हैं। सो डब्ल्यूटीओ न्यूज में रहता है, यूनेस्को न्यूज में रहता है, वर्ल्ड बैंक न्यूज में रहता है, आईएमएफ न्यूज में रहता है। सो ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशन कैन बी द प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन in the competitive exam, so it is very important.